Hello dear student, myself Dr. Rajendra Kumar from Government Polytechnic Jansat, Muzaffarnagar. Today we will discuss about the remaining fluid properties. पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लूइड प्रॉपर्टीज ग्रेविटी। आज जो प्रॉपर्टीज बच गई थी उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज इज स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। क्या होता है वेट डेंसिटी, अपेक्षिक भार क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तब here the basic definition of the specific weight is the specific weight or weight density of the fluid is the ratio between the weight of the fluid to its volume. In simple way, we can define it the weight per unit volume, weight per unit volume of a fluid is called density, weight density. This weight density is denoted by small w. It's denoted by small w. In the form of mathematical, it can be formulated W is equal to weight of fluid upon volume of fluid. Weight is denoted by capital W and volume of fluid is denoted by V. In general, we know that weight W is equal to mg, where m is mass of fluid and g is gravity of fluid or acceleration due to gravity. Okay, then put here W is equal to mg, mg upon V. Here in this formula we can see m upon v. आपने इसे पहले पढ़ा है m upon v. m मतलब मास ऑफ द फ्लूइड एंड v मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, m upon v. तो m upon v आपको याद आ रहा होगा, m upon v क्या था? डेंसिटी, which is denoted by rho. Then W is equal to rho G. This is a formula to find out the specific weight. W is equal to rho G. Okay. Next property is number third, specific volume. Specific volume. Okay. The basic definition of the specific volume is
The fluid is defined as the volume of a fluid occupied by a unit mass or volume per unit mass of a fluid is called specific volume. ओके, जैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, किसी तरल के इकाई भार के आयतन को उस तरल का आपेक्षिक आयतन कहते हैं. ओके, इन मैथमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड टू दिस specific volume is equal to volume of fluid upon mass of fluid. Okay, volume of fluid upon mass of fluid. Or you can also define specific volume of a fluid, volume of fluid per unit mass of the fluid. Okay, if you reciprocal this formula, then you can write here in this form 1 upon mass of fluid upon volume of fluid. Then you can also write it in the form of 1 upon rho. Rho is a density. Why it is? Because the specific volume is the reciprocal of mass density. The specific volume is the reciprocal of the mass density. Okay, 1 upon rho. This is mass density, rho. So reciprocal 1 upon rho. Understand? Okay. You can also express this in the form of unit. You know the unit of this rho, then you can write of this unit. Okay, like this, meter cube per kg. Okay, next is the next unit is specific gravity. ओके, अब आप देखेंगे कि हमें पढ़ना है स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड. स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब जो भी इंटरनेशनल लेवल पे फ्लूइड्स स्टैंडर्डाइज किए गए हैं उनको हम स्टैंडर्ड फ्लूइड्स कहते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि एट द इंटरनेशनल लेवल जो स्टैंडर्ड लिक्विड है वो हमारा वाटर लिया जाता है और जो हमारी स्टैंडर्ड गैस है वो हमारी एयर ली जाती है. ओके, तो वी कैन डिफाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी. इट इज़ द रेशियो ऑफ weight density of the fluid to the weight density of the
liquid. In the mathematical form, in the form of liquid, the specific gravity, it is also denoted by capital S. Okay, then specific gravity in terms of liquid इज इक्वल टू वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. और स्टैंडर्ड लिक्विड. अब जो हमने डिस्कस किया है कि इट इज द रेशियो ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड और स्टैंडर्ड फ्लूइड. तो स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब वाटर, तो हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ डेंसिटी वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी of water, because water is standard fluid. Okay, and in terms of gas, S is a specific weight gravity, then in terms of gas it is mathematically shown like this: weight density of gas, weight density of gas divided by weight density of standard gas. स्टैंडर्ड गैस मतलब एयर, हाइड्रोजन आप ले सकते हैं, एयर आप ले सकते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड गैस है. ओके, मैं लिख देता हूं वेट डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ एयर. ओके, तो जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जब हम किसी लिक्विड के रेस्पेक्ट में उसको हम डिफाइन करते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी जो लिक्विड है उसका वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड और स्टैंडर्ड फ्लूइड. तो स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा होगा, हमारे पास वाटर होगा. ऐसे ही हम जब गैस की फॉर्म में इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ गैस टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस. तो स्टैंडर्ड गैस कौन सी है हमारे पास, एयर. ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है विस्कोसिटी, श्यानता. श्यानता, श्यानता किसी भी फ्लूइड
की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, श्यानता को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Viscosity is defined as the property of a fluid which offer resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid। आपने देखा होगा कि जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें अपर लेयर एंड लोअर लेयर दो बन जाती है। अपर लेयर आगे की तरफ बढ़ती जाती है और लोअर लेयर रुक जाती है। किसकी वजह से? शियर की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो जो विस्कोसिटी है, श्यानता है, ये प्रतिरोध है। किसके बीच में प्रतिरोध है? ये अपर लेयर और लोअर लेयर, इन दोनों के बीच में फ्लो को रोकना है। इसी को हम श्यानता कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। मतलब कि हमारे पास दो लेयर है, एक लोअर लेयर है और एक अपर लेयर है। तो इट इज द रेजिस्टेंस of the movement of one layer to the another layer। तो ये फ्लूइड को फैलने से रोकता है, उसी को हम श्यानता कहते हैं। ये किसी भी फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी फ्लूइड को फैलने से रोकती है। सो इट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। इन सिंपल वे वी कैन डिफाइन इट इज द रेजिस्टेंस to flow of liquid। ओके, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इन पैराग्राफ में एंड इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। लाइक हियर we draw the velocity variation near a solid boundary। I have this boundary and I have two layers, one is upper layer and one is upper layer and one is lower layer, and we can define here the u is the velocity of lower layer and u plus du is the velocity of upper layer। This is a graph between the travel distance and flow velocity of two layer. This is a distance between from the floor to lower layer of the fluid, and dy is a distance between lower layer to upper layer। dy why? Because this distance is minimum, more minimum, so it is written by dy। And here du is the flow velocity between two layers, and du is also very small velocity. It is also called velocity profile। Okay, then as we can discuss here, when upper layer and lower layer discuss here, और कोई भी फ्लूइड जो फ्लो कर रहा होता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है या शियर हो रहा है।
बिकॉज विदाउट शियर फ्लूइड रुकेगा ही नहीं, बिकॉज विदाउट रेजिस्टेंस कोई फ्लूइड स्टॉप होगा ही नहीं, वो लेयर बहता जाएगा। तो इसीलिए तो विस्कोसिटी को हम लोगों ने डिस्कस किया है, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है बिटवीन टू लेयर्स, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है। शियर स्ट्रेस मीन्स, सिंपली आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है, जैसे आप कर सकते हैं कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज प्रेशर और फोर्स applied on the element at particular area, or you can define stress is defined as force per unit area. Stress is equal to force upon area. You can also say it force. Pressure is also what? Pressure is also force upon area, and stress is also force upon area. Pressure is external and stress is internal. Okay, and in the terms of shear stress is also generated between two layers when one is stop and another is try to flow. Okay, so the shear stress is noted by tau, like this, tau. We can define here the shear stress is proportional to the rate of change of velocity with respect to y. What is this? कि जो shear stress है वो proportional होती है velocity के changing with respect to y. तो अब हम लिख सकते हैं कि tau is directly proportional to change in velocity with respect to change in distance. Okay, distance means two layer distance. Okay, then tau is directly proportional to du upon dy. हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं कि tau is equal to mu du upon dy. du upon dy. Then tau is equal to mu du upon dy. What is mu? Mu is a proportionality constant. It is a constant, or it is also called coefficient of dynamic viscosity. ओके, तो जो shear stress है दो लेयर्स के बीच में, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि shear stress is directly proportional to the change of velocity with respect to y. ओके, तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको इस तरीके से। अब हम बात करें कि विस्कोसिटी, हमें समझ आया कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी होता है किसी भी
लेयर्स के बीच में, कोई दो लेयर्स के बीच में फ्लूइड फ्लो को रोकना। ओके, ये हमारी विस्कोसिटी होती है। ओके, ये सिंपल है कि विस्कोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टडी करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास 6, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता था। क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी? यह तरल का वह गुण है जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। मतलब कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। अब ये बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी, अब जैसे कंप्रेसिबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब किसी तरल के ऊपर हम बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। जैसे हमने कोई गैस है हमारे पास, उसको हमें सिलेंडर में भरना है, तो जब हम उसके ऊपर बाहरी फोर्स लगाएंगे, कोई बाहरी प्रेशर लगाएंगे, तो उसके आयतन में चेंज होगा, कंप्रेस होगा, उसके आयतन में चेंज होगा। अब ये जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल टू दी बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है। तो पहले हम बल्क मॉडुलस के बारे में डिस्कस करें कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय के। बल्क मॉडुलस को हम किससे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं। ओके, देन बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब चेंज, चेंज इन ओरिजिनल थिंग, चेंज इन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन, पहले स्ट्रेन को थोड़ा सा देख लें। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम में कितना चेंज हो जाता है और कितना हमारे पास पहले से वॉल्यूम था, उन दोनों के रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, देन चेंज इन लेंथ divided by original length. But here in this formula, bulk modulus is equal to K is equal to compressive stress upon volumetric strain। मतलब कि वॉल्यूम हमें लेना है, वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, एंड स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें, व्हेन अ कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड ऑन अ एलिमेंट और ऑन अ फ्लूइड, द स्ट्रेस इज जनरेटेड is known as compressive stress. Then the bulk modulus K is equal to, we can also define, increase of pressure।
अब जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या था? कंप्रेसिव स्ट्रेस इज अ इंटरनल स्ट्रेस, हमने डिस्कस किया था अभी। इंटरनल फोर्स पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट एरिया। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इंक्रीज ऑफ प्रेशर, मतलब बाहर से हमने फोर्स अप्लाई किया है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये है हमारे पास K इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम अगर बात कर रहे थे कॉम्प्रेसिबिलिटी की, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी हमने डिस्कस किया है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर, किसी फ्लूइड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन आता है, उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अब देखिए कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, उसी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और जो कंप्रेसिबिलिटी है ये बल्क मॉडुलस का ऑपोजिट होता है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट इज, हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर। प्रेशर इज डिनोटेड बाय P। प्रेशर तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, तरल द्वारा सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मतलब प्रेशर इज द फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। दाब क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकली P इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। ओके, पर्टिकुलर एरिया पर कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ओके, यूनिट भी आप लिख सकते हैं, दिस इज न्यूटन एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हमने लगभग सारी स्टडी कर ली हैं। ओके, अब हमें थोड़ा सा डिस्कस करें कि इसी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम सब जानते हैं, इसे वर्ड से हमें समझ आ रहा होगा कि सरफेस के ऊपर जो टेंशन आ जाता है, सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगा होता है उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, बिहेवियर होता है, उसी को हम सरफेस टेंशन कह रहे हैं। तो इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स acting on the surface of a liquid. Understand or not? Surface tension is defined as the tensile force acting on the surface of a liquid. किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर कोई टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे कोई हमारे पास ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट है, ओके, बूंद आप लोग देखते होंगे, बारिश की बूंद भी देखी होगी आपने।
ड्रॉपलेट है। जब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, बाहर से कोई फोर्स प्रेशर अप्लाई किया, जिसको हमने P डिनोट किया, फोर्स अप्लाई कर दिया आपने, ओके। तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है, ओके। अब आप देख रहे हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये जो आपका ड्रॉपलेट है, इसके सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ है। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर टेंशन क्रिएट हो गई, सरफेस टेंशन क्रिएट हो गई है, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब जैसे कोई हमारे पास ड्रॉपलेट है और इसका डायमीटर हमारे पास सपोज d है, तो जब हम एरिया फाइंड करते हैं इस ड्रॉपलेट का, तो एरिया, क्षेत्रफल, एरिया इज इक्वल टू 5/4 d²। ये हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो जाता है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। अब फोर्स इज इक्वल टू, हम सब पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ओके। तो प्रेशर हम लोगों ने देखा अभी P, एरिया कितना है हमारे पास, 5/4 d²। तो F इज इक्वल टू P इंटू 5/4 d², ओके। एंड सरफेस टेंशन को किससे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से। सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय व्हाट, सिग्मा। अब हम देखते हैं कि जब हमने इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया, बाहरी फोर्स अप्लाई हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ बॉडी भी उतना ही फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करती है, बॉडी भी उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। तो हम देखें कि अगर यहाँ पर कोई टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो रहा है, टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये जो टेंसाइल फोर्स है ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सर्कमटेंसेस ऑफ द कटिंग पोर्शन, दिस हेयर कटिंग पोर्शन, as we can discuss here, tensile force is equal to sigma multiply circumferences, not circumferences, circumferences. And circumference of this droplet is pi d, as we know that 2 pi r pi d, then sigma into pi d. So here we can see there are two forces, one is tensile force and other is pressure force. Tensile force is a external force applied to the body and pressure force is internal force applied by the droplet due to the tensile force, okay. Because for the equilibrium these forces are equal to each other, one is pressure force and other is tensile force, then pi by 4 d square or P into pi by 4 d square is equal to sigma pi d. This one is tensile force and this one is pressure force, okay. Here pi cut by pi and d is cut by 1d, then P into d by 4 is equal to sigma, okay.
we can also write in the form P is equal to 4 sigma upon D, where P is pressure, sigma is surface tension, and D is diameter of droplet. From this formula we can conclude that when diameter of the droplet decrease, the pressure intensity inside the droplet increase. When the diameter of the droplet decrease, then the pressure intensity of the droplet inside the droplet increase. Very important question. When the diameter of the droplet decrease, then the pressure intensity inside the droplet increase. Okay. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है. कल हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.